الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک اشتہار۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ اور ان کے اثرات کے عنوان سے کچھ گفتگو آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے منع کیا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کر۔ انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں رکھی گئی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو عقل کا چراغ دیا گیا لیکن شہوات نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق ہے اس کو شہوتیں دی گئی ہیں لیکن چراغ عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری مخلوق جس کو چراغ عقل بھی دیا گیا اور شہوات کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا۔ فرمایا جن کو محض عقل دی گئی ہے، شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں، اور جن کو محض شہوات دی گئی ہیں، عقل نہیں دی گئی، وہ بہائم ہیں، چوپائے۔ اور جس کو شہوات بھی دی گئی ہیں اور چراغ عقل بھی دیا گیا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ ایک طرف اس کو خیر کا راستہ دکھایا گیا، دوسری طرف شر کے لیے بھی اس کے اندر طاقت موجود ہے اور اس کا رجحان اس سمت بھی ہو، لیکن اس کو بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ نہیں، یہ شر کا راستہ۔ اس راستے پہ چلے گا، تھوڑی سی مشکل تو ہے لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس راستے میں بظاہر تجھے آسانیاں اور سہولتیں نظر آئیں گی لیکن اس کا نتیجہ بڑا بھیانک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجبت الجنہ بالمقارب واجبت النار بالشہوات۔ جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹ کے رکھی گئی۔ انسان سے کوئی امر پوشیدہ نہیں رکھا گیا، دونوں چیزوں سے بتا دی یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ۔ اس کے نتیجے یہ ہیں، اس کے نتائج یہ ہیں، اس کو دونوں راہیں بتا دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرماتا ہم نے دونوں راہیں اس کو بتا دی اور اب اس کو اختیار دے رہی ہے کہ یہ حق کے راہ پہ چلتا ہے یا باطل کے راستے کو یہ اختیار کرے۔ اگر یہ سیدھی راہ پہ گامزن ہوگا تو نتائج اس کو پہلے بتا دیے۔ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں کھول کھول کے رکھا گیا اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا، کوئی شے معافی نہیں ہے۔ اس کو ترغیب بھی دی گئی ہے، اس کو ترغیب بھی دی گئی ہے، اس کو ڈرایا بھی گیا ہے، اس کو خوشخبری بھی دی گئی، بشارت بھی ہے اور تنذیر بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے سامنے۔ اور یہ نبیوں کا منصب ہے کہ وہ مبشر بھی ہے اور نذیر بھی، خوشخبری بھی سناتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں۔ اب انسان کے سامنے سب کچھ ہے، کھلی کتاب بھی ہے، وہ کتاب رحمت قرآن مجید کھولے تو کوئی عمل مخفی نہیں ہے، ہر شے اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ الگ بات ہے یہ آپ کے موت کر کے گزر جائے اور اس کتاب رحمت سے بے اعتنائی برتے، ہر شے کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔
लेकिन फिर भी इंसान की फितरत के अंदर चूंकि बुराई की तरफ भी एक कशिश मौजूद है, शहवात भी इसके अंदर मौजूद है, सिगरी जज्बात भी मौजूद है, तो इससे गुनाह का सरजद होना मुमकिन है। लेकिन मेरा रब कहता है अगर तुमसे गुनाह सरजद हो गया है तो पलट आओ, मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए। अगर गुनाह सरजद हो गया है तो तौबा का दरवाजा बंद तो नहीं हुआ है, सूरज भी मगरब से तुलू तो नहीं हुआ। तुम पलट आओ, तुम माजरत करो, तुम आंसू बहा दो, मैं तुम्हें इस तरह कहूंगा जिस तरह तुमने कोई गुनाह किया हुआ है। जो कबीरा गुनाह है उन पे तौबा वाजिब है, और जो सगीरा गुनाह है वो वुजू से डरते रहते, वो नमाज से डरते रहते, वो रोजे और दीगर आमान से सगाए खुद बहुत डरते रहते, तौबा ना भी करें तो सगीरा गुनाह में डरते रहते, और जो कबायर हैं उनसे तौबा करने का हुक्म है। और अल्लाह फरमाता है अगर तुम कबायर से तौबा करोगे, कबायर से इज्तिनाब करोगे तो तुम्हारे दूसरे गुनाह में वैसे ही माफ करता। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू के रहमत के दरवाजे हमारे लिए खुले हो। अगर गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन रजू कर। इंसान है तो आजमाइश में, लेकिन इस आजमाइश में हुस्न है इसका। अगर कोई नाबीना कहे मैंने सारी जिंदगी खैर मारफ को नहीं देखा, तो बताइए उस नाबीने का कमाल होगा। तो भाई आज तक मैं कभी सिनेमा घर नहीं गया हूं, मैंने कभी किसी तस्वीर को भी नहीं देखा, तो ये नाबीना का कमाल नहीं होगा। कमाल तो उसका है कि जिसकी आंखों में नूर है और शबाब की बिजलियां हैं और हुस्न उसके सामने पीछा चला जा रहा है और वो एक नजर भी उठा कर नहीं देखता। कमाल तो उस मुर्दाती का है जो पानी में गोते भी लगाती है और अपने परों को गीला भी नहीं होने दे। तो कमाल उस इंसान का है कि जिसको शहावतों और अक्ल दोनों से नवाजा गया है, लेकिन वो अक्ल के चाक की रोशनी में चलता है और अपने रब का खौफ पाता है। लेकिन फिर भी चूंकि उसके अंदर दूसरी जिहत भी है, कभी गुनाह सरजद हो जाए तो वो फौरन तौबा करे। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं। सुल्तान महमूद गजनवी अय्यास से बड़ा प्यार करता, जो बाकी वज़रा और मशीर थे वो जनते थे। हसद की आग में कि बादशाह ने कौन सी खूबी इसमें देख लिया कि सबसे ज्यादा इसे तरजीह देते। बादशाह कभी कभार कोई ऐसा काम करता जिससे लोगों पर हजरत अय्यास का तफक्कुर वाक़ हो। एक दिन बादशाह ने एक तालाब के किनारे खड़ा था, वज़रा और मशीर भी थे। एक कीमती मोतियों की डिबिया से मोती निकाले और उस तालाब पे फेंक दिए, और जितने भी वज़रा थे उनको कहा कि इन मोतियों को निकाल के लाओ, और सुनो तुम्हारा लिबास और तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। अब सबने कहा कि ये अजीब सा हुक्म है, मोती भी तह से उठा करके डाले हैं और बदन और कपड़े भी ना भीगे, ये कैसे होता? उन्होंने कहा कि ये तो हुक्म ही ऐसा जिसकी तामील नहीं हो सकती। अय्यास ने फौरन छलांग लगाई और तह से मोती निकाले, हथेली पे रखे, बादशाह के सामने पेश करे। बदन बिचड़ रहा था, कपड़े बिचड़ रहे थे। बादशाह ने गुस्से से कहा, अय्यास मैंने कहा था कि तेरे कपड़े भीगने नहीं चाहिए, तेरा बदन भीगना नहीं चाहिए, और ये क्या हुआ? तो अय्यास ने हाथ जोड़ दिए, कहा बादशाह जनाब दो हुक्म थे, एक हुक्म था मोती निकालना है, दूसरा हुक्म था लिबास नहीं भीगना चाहिए। मैंने एक तो पूरा कर दिया है, दूसरे में गलती हो गई है, मैं माफी चाहता हूं। तो बात यह है कि इंसान जहां नेकियों के मोती ना सकता है वो पेश करना पे, और जहां गलती हो जाए बशा है वहां हाथ जोड़ दे, मालिक ये मुझसे गलती हो गई है। तो मालिक इतना करीम है कि जब बंदा उसके हुजूर अपने जुर्म का इतराफ करता है, हुजूर नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जिस तरह उसने कभी गुनाह किया हुआ नहीं। अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमाते हैं। तो इसलिए कबाइर से बची कोशिश करें। सगायर जिंदगी में सरजद होते रहते हैं, तो अल्लाह उनसे भी माफी अता फरमाने वाला। अपने आप को ठीक करें और शौरी तौर पे किसी गुनाह का इर्तिकाब ना करें, और अगर कभी गुनाह सरजद हो जाए तो फिर माजरत करें। मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह शेख मुअज़्ज़म आप फरमाते हैं, दिलों में बुरी नहीं न नीयतों बुरी में, खुदा मैं तो हो जाते लाचारियां। यदि मेरा दिल बुरा नहीं, मेरी नीयत भी खराब नहीं है, लेकिन लाचारी में मुझसे गुनाह सरजद हो जाते, तो लाचारी में जब गुनाह सरजद हो जाए तो बंदा माजरत कर ले, अल्लाह पिछले गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। सगायर जो है सबीरा गुनाह जिन्हें कहा जाता है, उनकी तादाद तो बहुत सारी है। जो कबीरा गुनाह है उसके बारे में उम्मत के मशाहिर का इख्तिलाफ, बाज़ ने कहा कि कबीरा गुनाह सिर्फ 7, और वो बुखारी शरीफ की एक हदीस है
हुजूर ने फरमाया 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो, उनमें सूद, जिना, चोरी और इस कबील के गुनाह, वालिदैन की नाफरमानी, जंग से भागना। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जो कबीरा गुनाह है उनकी तादाद 70 है। हजरत इब्न हजर ने अज़्ज़वाजिर के अंदर 467 गुनाह के दवाई हैं जिनके बारे में उनका दावा है कि ये कबीरा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कबायर की फहरिस्त बताई है वो 700 गुनाह। बहरहाल जिस गुनाह पर वईद हो, जिस गुनाह पर हाथ हो, जिस गुनाह पर जहन्नम की सजा का रास्ता हो, जिस गुनाह पर नबी अलैहिस्सलाम या पिछले नबियों या फरिश्तों की लानत हो, उलमा ने ज़ाब्ता बयान किया है कि वो गुनाह कबीरा कहना है। तो कबीरा गुनाह हो या सगीरा, उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। फरमाते हैं कि जो सगीरा गुनाह है जब उसके साथ तकरार किया जाए तो वो सगीरा नहीं रहता, कबीरा हो जाता है। और कबीरा गुनाह पर जब तौबा की जाए तो वो कबीरा क्या सगीरा भी नहीं रहता। तो ये है कि अगर इंसान गुनाह को हल्का जाने तो वो हल्का नहीं होता, बल्कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जब बंदा गुनाह को हल्का जानता है तो अल्लाह के नजदीक वो बड़ा होता है, और जब बंदा छोटे गुनाह को भी बड़ा जानता है कि मुझसे बड़ा गुनाह करना लोगे तो वो अल्लाह के नजदीक जो है वो छोटा होता है। ये अल्लाह ताला जल्ला शान की करम नवाजियों का दूर है जो मोमिन पे बरसता है। बल्कि मोमिन की शान बयान की गई है कि जब उससे गुनाह सरजद होता है तो वो यूं महसूस करता है जिसका बहुत पहाड़ के नीचे आ और अब उसके ऊपर क्या जाएगा उसे कुचल देगा। और मुनाफिक की हालत ये है कि जब उससे गुनाह सरजद हो जाता है तो वो यूं महसूस करता है कि मेरे जिस्म पे मक्खी बैठी थी और मैंने हल्के से इशारे से उसको उड़ा दिया। जितनी तकलीफ उसको मक्खी के बैठने की होती है इतनी तकलीफ उसको गुनाह की होती है। लेकर जो मोमिन होता है, साले होता है, उसको ऐसे लगता है जिस तरह बहुत पहाड़ के नीचे आ गए। और सच्ची बात है कि जिसकी चादर सफेद हो उसके ऊपर एक भी धब्बा लगेगा तो तकलीफ हो, और जिसकी सारी चादर गंदी होगी कोई एक नया धब्बा लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मुत्तकी है और मोमिन है उसके ज़मीर की चादर, बातिन की चादर सुथरी होती है तो वो मामूली दाग भी बर्दाश्त नहीं करता, और जो मुनाफिक होता है उसकी चादर मैली होती है, दाग पे दाग भी लगते रहने उससे परवाह नहीं होती है। जो बुजुर्ग हैं हमारे, अगर हम उनके हालात पढ़ें तो उन्होंने इस हवाले से बहुत कुछ इरशाद फरमाया है कि गुनाह के असरात कितने होते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्न सीरीन कहते हैं कि एक शख्स का तंगदार गरीब आदमी, तो मैंने उसको कहा और उसकी गुर्बत पर और उसकी जो है वो कसब कुर्सी पर मैंने तादा दे रही है। फरमाते हैं कि इस वाक़या को 40 साल गुजर गए। 40 साल के बाद मैं खुद उस मुसीबत में फंस गया और मैं खुद मखलूज हो गया, और फिर मुझे याद आया कि मैंने किसी को ताना दिया था। और एक बुजुर्ग हैं फरमाते हैं मैं एक दिन जा रहा था नमाज जुमा पढ़ने के लिए, तो मेरे जूते चोरी हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि ये तकलीफ मुझे क्यों पहुंची है। तो वो कहते हैं मैंने सोचा कि आज जो नमाज जुमा पढ़ने के लिए आया हूं तो मैंने सुन्नत गुस्ल नहीं किया, तो सुन्नत गुस्ल ना करने की वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबत आई। यदि हमारे बुजुर्ग किन चीजों का भी लिहाज और ख्याल रखते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं मस्जिद में गया तो एक शख्स एक कोने में बैठ के रो रहा और काफी लोग और भी वहां मौजूद थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये शख्स रियाकारी कर रहा है, इसकी आंखों में जो आंसू हैं ये तसन्नो और बनावट है। वो कहते हैं जब मेरे दिल में ये ख्याल आया तो 40 दिन तक मेरी नमाजों की लज्जत छिन गई। 40 दिन मुझे नमाजों का सरूर ना आया कि मैंने एक मोमिन के बारे में बदगुमानी की है। अल्लाह अकबर। हज़रत फुज़ैल बिन अय्यास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि सवारी या पाती के अंदर मैं कोई ऐसी बात देखता हूं कि वो मेरी नाफरमानी करते हैं, तो फिर मैं गौर करता हूं तो मुझसे कोई ना कोई गुनाह सरज़दा हो गया होता है, जिस गुनाह की पादाश के अंदर मुझे ये तकलीफ पहुंचती है। हज़रत इब्न सीरीन का कौल भी आपने सुना और दीगर आइमा के कौल भी आपने सुने। एक बुजुर्ग फरमाते मैंने सिर्फ एक दिन मशकूक लुकमा खा लिया, सिर्फ एक लुकमा मैंने खाया और वो मशकूक था। तो फरमाया मैं रूहानियत के एतबार से 40 साल पीछे चला गया। मैं और आप देखें आज हमारा रिज़्क़ किस तरह है। लोग एक बंदा दूर से सफर करके आता है और अल्लाह के घर काबतुल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, यह अपने दोनों हाथों को लंबा करके दुआ मांगता है और क्या कहता है अल्लाह
वमतअबहु हरामुन वमशरबहु हरामुन वमलबसहु हरामुन वग़ुज़िया बिल हराम। उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का, उसको ग़िज़ा हराम की दी गई। हुज़ूर फरमाते हैं कि बताओ उसकी दुआ कैसे कबूल हो। अगर लुक़मा हराम का हो जाए तो दुआओं की कबूलियत नहीं होती है। तो जो गुनाह होते हैं उनके असरात, एक कौल है कि असुबह तो तमनउ रिज़्क़, जो शख्स सुबह को सोने का आदी है तो उसके रिज़्क़ के अंदर बेबरकती आ जाती। जो शख्स सुबह सुबह उठते हैं और फिर फौरन सोते नहीं है, उनके रिज़्क़ में बरकत होती है। तो इंसान से जो सुस्तियां और कोताहियां होती हैं इंसान की जिंदगी पर, उसके असरात मुरतब होते हैं। लेकिन जब कबीरा गुनाह इंसान से सरजद होने लगे तो फिर उसके कितने असरात होते हैं और इंसान को कितना नुकसान पहुंचता है। इस उन्वान के साथ एक एक कबीरा और उसके नुकसान गिनवाए जा सकते हैं। जिस तरह के हदीस में आता है कि जिस कौम में ज़ना फैल जाता है उस कौम में ऐसी बीमारियां फैलती है जिनका इलाज कोई नहीं होता। जिस तरह कि आजकल एड्स कुछ ममालिक के अंदर पूरी कसरत के साथ मौजूद है, जहां ज़िना आम। इसी तरह मुख्तलिफ गुनाह जब किसी कौम के अंदर पैदा होते हैं तो उनके अंदर उसके असरात भी पैदा होते हैं। ये एक अलग उन्वान है और फिर गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त और फिर उनके असरात बद की फहरिस्त। लेकिन मुतलक गुनाहों के सरजद होने से इंसान को जो नुकसान पहुंचते हैं, आज की इस नशिस्त में मुख्तसर गुफ्तगू में इस उन्वान से आपके सामने रखूंगा। गुनाह के सरजद हो जाने से सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि बंदे का रब उससे नाराज हो जाता है। और अगर अल्लाह ताला नाराज हो गए, जो खालिक है वो नाराज हो, तो बताइए बंदे के फंदे क्या है। अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो जिंदगी का चैन लुट जाता है। इंसान जितना मर्जी ऊंची हवाओं में उड़ता है उसके कल्ब को तस्कीन नहीं मिलती। तो जिसका रब नाराज हो जाए, चाहे वो कायनात के सारे हुस्न को कशीद कर ले, उसके दिल को तमानियत नहीं मिलती। तमानियत तब ही मिलेगी जब रब राजी। तो गुनाहों के मिन जुमला असरात में से ये बुनियादी असर है कि जो कोई शख्स गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो उसका रब उससे नाराज हो जाता है। हुजूर की नाराजगी भी उसको जो है वो उठानी पड़ती है और रब की नाराजगी और रब से दूरी ये उसके लिए एक ऐसी मुसीबत है जो उसके ऊपर आन पड़ती है। और जब रब नाराज हो गया तो फिर उसके पल्ले कुछ ना रहा। अगर रब राजी है तो सब्र है, अगर रब राजी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। तो ये है पहला नुकसान जो कि बुराइयों और बदियों के नतीजे के अंदर किसी शख्स को पहुंचता है। दूसरा, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो बरज़ख में, दुनिया पर और आखिरत में उसको सजाओं का सामना करना पड़े। अल्लाह चाहे तो अपने करम से माफ फरमाने वाला है, लेकिन उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि वो माफ करे। वो चाहे तो सजा दे और चाहे तो माफ कर दे। तो जब कोई शख्स गुनाह करके तौबा कर लेता है वो माफ करने वाला। लेकिन अगर कोई शख्स कटा रहता है और गुनाहों पे जमा रहता है तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहू इस बात पे कादिर है कि उसको सजा दे। वो सजा दुनिया में भी मिलती है, वो सजा कब्र में भी, और वो सजा आखिरत में। मुख्तलिफ गुनाहों की मुख्तलिफ नौइयत है। उलमा ने लिखा है कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजा दुनिया में जरूर मिलती। उनमें से एक गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। जो शख्स वालिदैन का नाफरमान हो, आप उस शख्स पे निशान लगा ले, आखिरत में उसको जो रसवाई, जिल्लत, परेशानी उठानी पड़ेगी वो तो होगी। वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान है वो दुनिया के अंदर भी जरूर जलील रसवा हो। ये उसके बुरे गुनाह का खमियाजा है जो उसको दुनिया पे भुगतना पड़ा। तो दुनिया पर भी, कब्र में, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। कब्र जन्नत के बागों में से या तो एक बाग है या जहन्नम के दरों में से एक दर है। उसको जो गुनाह करता है तो उसको कब्र में भी सजा आई और फिर आखिरत की सजा और जहन्नम की सजाएं अनायास। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा मुझे जहन्नम के अज़ाबों का तज़किरा सुनाओ। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की हुजूर सबसे हल्का अज़ाब जो जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये होगा कि उसके पाँव में आग के जूते रखे जाएंगे। बाकी उसका सारा बदन सलामत हो, सिर्फ पाँव में आग के जूते पहनाए जाएंगे। और उसकी कैफियत क्या होगी? योगली बेनकवा तबाह हो, इतनी हिद्दत और इतनी गर्मी और इतनी हरारत होगी कि तबाह पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आए। ये उस शख्स के अज़ाब की कैफियत है जिसके पाँव में आग का डंका है और बाकी जिस्म आग से बचा हुआ है। और जो सरासर आग में और आग के अंदर जिसको ढांप दिया गया है उस शख्स की कैफियत क्या हो?
बात चीजें हैं कि हम इस मुआशरे के अंदर उनको पूरा नहीं समझते। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जो शख्स अपनी नजर की पाकीज़गी का सामान नहीं करता और गैर मार्द को शहवत की नजर से देखता है, कल क़यामत के दिन उसकी आंखों को जहन्नम की आग से भर दिया जाए। इस बात पर बार बार सोचने की जरूरत है। आज ये ऐप और ये गुनाह हमारे मुआशरे के अंदर सरायत किए हुए है और हम इसको ऐप भी नहीं समझते हैं। तो जिसके पाँव में जहन्नम की आग से बना हुआ जूता रखा जाए उसका तो दिमाग पिघल जाए, और जिसकी आंखों में जहन्नम की आग भर जाएगी उसकी क्या करेगा? तो दुनिया का खुसरान और आखिरत का कसारा और कब्र की सख्तियां उस शख्स को पहुंचेगी जो शख्स गुनाहों की जिंदगी गुजारने वाला है। गुनाह का एक और असर यह है कि इंसान का दिल स्याह हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़े। अगर वो तौबा करने को मिट जाता है, अगर तौबा नहीं करता तो फिर दोबारा गुनाह करता है, उस स्याही के साथ एक और स्याही लगता है, फिर वो गुनाह करता है तो फिर स्याही फैलती रहती है, हत्ता कि एक वक्त आता है उसका पूरा दिल स्याह होता है। और जब पूरा दिल स्याह हो जाए तो फिर नुकसान ये होता है उसको नेकी और बदी की तमीज नहीं रहती। जो शख्स पक्का नवाजी हो, किसी दिन रात देर से कहीं से आया हो और सो जाए और उसकी नमाज कज़ा हो तो उसको कितना तलक हो, कितना दुख होता है कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। इसी तरह कोई गुनाह सजद हो जाए तो जो देखो शख्स है वो सख्त परेशान होता है, भाई मुझसे ये गुनाह सजद हो गया। लेकिन अगर वो नमाज़ी छोड़ने में आदी बन जाए तो फिर पांचों वक्त मस्जिद से अज़ान की सदाएं बुलंद होती रहती है, उसको खबर भी नहीं होती। वो लंबी तान के सो रहा हो, उसको रमजान में भी नमाज नसीब नहीं होती है, वो गुनाह पे गुनाह करता है, पति पे पति करता है, यहाँ तक कि वो इंसानों का शिकार करता है, वो इज्जतों को लूटता है, वो लोगों में खून चूसता है, वो आबरूओं को लुटेरा बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ज़मीर पे कोई बोझ नहीं होता है। असल वजह यह है कि उसका दिल स्याह हो गया है। जब दिल स्याह हो गया तो कोई और दफा लगा तो उसको महसूस न हुआ। तो ये गुनाह की सजा है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसका दिल स्याह हो जाता है, स्याह भी हो जाता है और सख्त भी हो जाता है। दुआ करो अल्लाह दिल को सख्ती और स्याही से महफूज फरमाए। दिल ही रहे तो अच्छा है, और अगर दिल पत्थर बन जाए तो फिर किसी इंसान की जो है वो अंदर की कैफियत के लुट जाने की और क्या मिसाल दी जा सकती है। गुनाह की बेजुमला सजाओं और असरात में से एक असर यह है कि तौफीके हक सलब कर दी जाती। अल्लाह ताला खैर की तौफीक उस शख्स को ही दी। बाज़ लोग होते हैं अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनको नेकी की तौफीक दे देता है जबकि उनके पास वसाइल भी नहीं हो, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास नेकी करने के असबाब मौजूद हो लेकिन इसके बावजूद उनको नेकी करना मुयस्सर नहीं होती। इसलिए कि इंसान नेकी खुद कैसे कर सकता है अगर अल्लाह तौफीक अता न करे। तो जो शख्स गुनाहों की जिंदगी गुजारने का आदी हो जाता है वो नेकी की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है और उससे हक सनद कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी सजा है कि किसी शख्स को अच्छाई भी जहां मुफ्त में अच्छाई आंख में आती हो। बात देखिए बड़ी आसान होती नेकी को छोड़े तो समझो, अगर जे तुम अपने मोमिन भाई को हंस के मिलते हो, अंडा पेशानी से मिलते हो, मुझ बड़े सादत हुजूर नबी रहमत ने फरमाया इस नेकी को भी छोटा ना समझना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। बल्कि फरमाया जब दो लोग आपस में मुसाफिर करते हैं तो उनके हाथ जुदा होने से कबल दोनों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? किसी को हंस के मिले तो ये मुश्किल काम है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी भी तौफीक नहीं होती है। उनके माथे पर वक्त तय नहीं होती है, हर वक्त उससे नहीं होते जितना लड़ के आया हूँ। बाज़ लोग अपने हाथ से देते हैं और बाज़ लोग तरगीब दे देते हैं और कोई खैरात करता है उनको भी सवाब होता है। और बाज़ लोग जो है वो उनकी हालत ये होती है कि एक शख्स को इफ्तार का बरस था, वो कर गया तो बीवी ने कहा कि आज बड़े परेशान हो, अल्लाह की राह में कुछ दे आए हो? उसने कहा मैंने कुछ नहीं दिया। तो कहा था इतने परेशान क्यों? उसने कहा किसी को देते हुए देख आया हूं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो है वो नेकी खरीदने और नेकी करने की तौफीक ही मुयस्सर नहीं आती, जबकि बात मौके ऐसे होते हैं कि नेकियां बिल्कुल आसान होती है इंसान के लिए, तो वो उन मौका पर भी नेकी हासिल नहीं कर सकते। और बंदा सोचता है कि यार इसके हाथ में ये दौलत आ गई थी, ये नेकी कर सकता था लेकिन इसने क्यों नहीं की। ये गुनाहों की जिंदगी गुजारने और गुनाहों में मुनहमिक रहने की सजा ये है कि इंसान को अल्लाह ताला नेकी की तौफीक नहीं देता। बाज़ साथ वो बिल्कुल तेज पहुंच जाते हैं लेकिन नेकी की तौफीक नहीं होती, और बाज़ बात जो है वो इंसान उसके ज़ाहरी असबाब
نہیں بھی پاتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے, اس کو دیکھی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی سے توفیق حق سلب کرے, اچھائی سلب کرے, یعنی اس کی کوئی قیمتی متاع ہدایت سلب کرے تو یہ بھی گناہ کی سزا کی ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی قیمتی متاع کو اس سے واپس لے گئے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص عیسائی ہو گیا, مسلمانوں کو پریشانی ہوئی, اچھا بڑا متقی پرہیزگار نمازی شخص تھا, عیسائی بھی ہو گئے. چند علماء مل کے گئے, اسے پوچھیں کہ اسلام کی کس چیز سے تو بدل ہوا ہے اور عیسائیت کی کس قدر سے متاثر ہوا ہے, اور اس کو اسلام کا تقوق اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی سچائی کے دلائل دیں, اور وہ واپس پلٹ کے جو ہے وہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے. اس کی بستی میں, اس کے گاؤں میں لوگ پہنچے. علماء کرام نے کہا کہ تو اسلام سے بدزن ہو گیا, کفر عیسائیت میں چلا گیا. کون سی اسلام کی قدر تھی جس نے تجھے دور کیا, اور عیسائیت کی کس قدر نے تجھے قریب کیا؟ تو وہ کہنے لگا اصل ہوا اس طرح کہ ایک دن سردیوں کے موسم میں میں وضو کر کے نماز کی تیاری میں بیٹھا تھا, ادھر اقامت ہو گئی, ادھر میرا وضو جاتا تھا. میں نے بڑی مشکل سے وضو کیا تھا تو میں دوبارہ وضو کرنے کو شاط سمجھا اور میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا. لیکن میں ڈرتا رہا کہ اللہ کے قہر کی کوئی بجلی میرے اوپر نازل نہ ہو جائے کہ میں مصلی رسول کی توہین کر رہا. لیکن سلام پھر گیا, میرے اوپر کوئی قہر و غضب کی بجلی نازل نہیں ہوئی. تو میں نے سلام پھیرا, گھر آیا, پھر میں نے سوچا کہ اسلام تو سچا دین ہی نہیں ہے. اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے اوپر کوئی قہر نازل ہوتا. تو میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا. علماء کہنے لگے تو کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی قہر نازل نہیں ہوا, اس سے بڑا قہر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا دین چھین لیا مجھ سے. تو کہتا ہے کہ مجھے ہوا کچھ نہیں, اس نے اسلام ہی چھین لیا مجھ سے, حق واپس لے لیا اور حق سلب کر لیا. تو بعض بات انسان سمجھتا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے ڈاکے ڈالے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے چوریاں کی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے لوگوں کا خون نچوڑا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے غریبوں پہ ظلم کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. میں اسی طرح منتخب ہوتا ہوں, میں اسی طرح جو ہے وہ عزت کے پاس پہنے ہوئے ہوں, لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, عزت کی مسند پہ بٹھاتے ہیں, معاشرے میں میری پہچان ہے, میری شہرت ہے, میں ظلم اور جبر کرتا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. بعض بات وہ ڈھیل کو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی سمجھ لیتا ہے, اور بعض بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے جو حق سلب کر دیتا ہے, اچھائی کرنا اس سے جو ہے وہ سلب کر دیتا ہے. وہ جس منصب عہدے پہ پہنچا وہ چاہتا تھا, وہ چاہتا تو وہ لوگوں کو عدل دے سکتا تھا, لوگوں کو انصاف دے سکتا تھا, معاشرے میں امن قائم کر سکتا تھا, اچھائیوں کو فروغ دے سکتا تھا. لیکن وہاں پہنچ کر بھی اس کو اس کی توفیق نہ ہوئی, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. میاں اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ اللہ تجھے اچھائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا ہے. تو یہ گناہ کا وبال ہے اور یہ گناہ کی سزا ہے. گناہ کی من جملہ سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انسان کو ضعف حافظہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے, اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور علم چھن جاتا ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام بقی بن جراح الکوفی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہے, تو میرے لیے کوئی علاج تجویز کیجیے. امام شافعی بہت بڑے شاعر ہیں, انہوں نے اس واقعہ کو اور اس بات کو جو ہے وہ ایک شعر میں بیان کیا. فرماتے شفوت ان ترقیر سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی. میں امام بقی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے سوء حفظ کا عارضہ ہے, میں بھول جانے کا مزاج رکھتا ہوں. تو حضرت امام بقی فرمانے لگے گناہ کرنے چھوڑ تو اللہ حافظہ مضبوط کر دے گا. اب ظاہر ہے حضرت امام شافعی چوریاں تو نہیں کیا کرتے تھے, امام شافعی ڈاکے تو نہیں مارا کرتے تھے, لیکن پھر بھی ان لوگوں سے خلاف اولا پر کام سرزد ہو جائے تو اس پر پھر کو پکڑ ہو جاتے. اس لیے حضرت امام بقی نے امام شافعی سے کہا فاوصانی بترک المعاصی, کہتے مجھے حضرت بقی نے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو اللہ تمہارے حافظے کو مضبوط کر دے گا. ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہم ابھی طالب علم تھے اور استادوں کے سامنے زادن تلمس ابھی طے کیے ہی تھے کہ آپ نے ہمیں یہ شعر سنایا, اور کثرت کے ساتھ ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ رٹا لگانے سے محنت کرنے سے بھی فائدے ہوتے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن علم کا دودھ بیٹا تمہیں تب ملے گا جب تمہیں تقوی کا دودھ نصیب ہوگا. جو طالب علم جتنا نیک اور متقی ہوگا علم میں اتنا اس کو دودھ نصیب ہوگا. تو جو شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اس کو جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کی, اس کو گالی دی یا کوئی ایسی بات کی,
تو فرمایا اس وقت تو مجھے کچھ نہ ہوا، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد مجھے پورا قرآن یاد تھا، سارا بھول گیا۔ تو بظاہر انسان کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن یہ گناہ کا وبال ہے کہ انسان کے علم کا نور چھن جاتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اثرات جو انسان کو پڑتے ہیں، اس سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی عمر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جب وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کا حیا اور آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی، اور یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کسی شخص کا۔ میں نے کل بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، کوئی شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تبلیغ کر رہا تھا۔ حضور میں دیکھ کر کے فرمایا تاحق فإن الحیاء من الایمان، فرمایا چھوڑ دے اسے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہوگا تو حیا لازم ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور حیا نہ ہو، جب مومن ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیا ہوگا، دل میں بھی حیا ہوگا، اور اگر مومن نہیں ہوگا تو آنکھوں کا حیا بھی لٹ جائے گا اور دل کا حیا بھی باقی نہ رہے گا۔ تو گناہوں کی دلدل میں جب بندہ پھنستا ہے تو اس کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان یہ ہے کہ اس سے حیا کی دولت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا حیا نہیں کرتی، اس کو شرم نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہی، شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے تعویذ گھوڑ کے پلا دی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ دولت نہیں رہی، اولاد میرا کہا نہیں مانتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالو۔ حضور نے فرمایا تھا 7 سال کی اولاد ہو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کی ہو جائے نماز نہیں پڑھتی تو مان کے پڑھاؤ۔ علموا اولادکم صلاۃ احسان، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن، ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اور ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سکھا دو۔ جب تم اپنی اولاد کو یہ نور دو گے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلے گی، کبھی شکایت نہیں ہو سکتی باپ آپ کو کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی۔ میں نے ایک شخص کو کہا جو اپنی اولاد کا رونا رو رہا تھا، میں نے کہا تو رسول اللہ کا کہا مانا تھا کہ آج تیری اولاد تیرا کہا مانے گی؟ حضور نے کہا تھا 7 سال کی ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھانا۔ تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا، تو نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دی تھی۔ آج تو ماں باپ دعوت بنتے نیکی کے راستے کے اندر۔ اگر کوئی بچہ دین کی راہ پہ چلنے لگ جائے، ماں باپ کہتا تو مسیح ہی ہو گئے۔ کوئی بچہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے لگ جائے، وہ کہتا بھی کبھی عمر ہی نہیں داڑھی کی۔ میں کہتا ہوں کہ عمر نہیں تھی تو داڑھی آئی نہیں تھی، داڑھی آئی اسی وقت جب عمر ہوئی ہے۔ تو یہ عجیب فلسفے بغاونے لگتے ہیں۔ ماں کہتے ہیں پتر تمہیں تیری شادی کرنی ہے، تو یہ عجیب عجیب ہم خود روکتے ہیں، اور کچھ ہم محنت کرتے ہیں، پھر کچھ معاشرہ کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر وہی بچہ ماں باپ کے بھی پھر قابو میں نہیں آتا۔ اگر پہلے دن آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ اور اپنے رب کی تحریر کھڑا کیا ہوتا تو اسی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اولاد آپ کے سامنے اونچی آنکھ بھی کر جاتی اگر تم نے رسول کریم کا حیا سکھایا ہوتا۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ تفریح تموز کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے بول کے پڑھائے اور نہ ہی کسی نے کانٹے جو ہے وہ دیواروں میں کبوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے مفتی اپنا پر بات کیا ہے اور اپنی اولاد کو حق کی راہوں کا مسافر نہیں بنایا ہے۔ تو جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ سزا اسے پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں اور دل کا حیا لٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومن کو بصیرت کا نور عطا فرمایا ہے اور اس نور سے مومن دیکھتا ہے، اور اسی طرح اس کے چہرے کی ایک چمک ہے، چاہے اس کی رنگت سیاہی مائل کیوں نہ ہو، لیکن جو نیکوکار کا چہرہ ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے اور بدکار کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کی آنکھیں بے رونق اور بے نور ہوتی ہیں۔ جس طرح بصیرت کا نور اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح اس کی آنکھیں بے رونق بھی ہوتی ہیں۔ تو برائی سے انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ نہیں تو دیکھ لو جو ظالم ہوگا، جو جابر ہوگا، جو اللہ کی حقوں کو پامال کرنے والا ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوگا، اور جو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے والا ہوگا آپ صبح دیکھیں گے اس کے چہرے پہ نور آپ کو نظر آئے گا۔ تو اہل اللہ کے چہرے
अल्लाह अकबर। और बुरे लोगों के चेहरे जो हैं वो साफ दिखाई देते हैं, पता चलता है। और जो है वो ईमान नजर से देखने वाला हो, दिक्कत नजर रखता हो, बिलखुसूस जिसको तकवे का नूर हासिल हो, वो चेहरे से पहचान जाता है। अल्लाह अकबर, चेहरे से दिखा। बल्कि मोमिन की शान ये है, मोमिन मोमिन की फरासत कलबी से डरा करो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। एक तो आम रोशनाई है, लेकिन मोमिन को अल्लाह फरासत का नूर देता है, लेकिन गुनाह करने वाले से ये वो नूर छीन लिया जाता है। एक ईसाई ने ये हदीस पढ़ी कि मोमिन की फरासत कलबी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। आला हज़रत ने इसको मलफूज़ात में लिखा है। उसने ज़ुन्नार पहनी, ऊपर अबा पहने, और कुछ साल के ऊपर इमामा बांधा, और मुसलमानों वाली शक्ल बनाई, और उस दौर के बहुत बड़े वली के पास गया। कहा मोमिन की फरासत कलबी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। हज़रत बताइए इसका मफ़हूम क्या है? वो बुजुर्ग फरमाने लगे इसकी ये तशरीह है, इसकी ये तशरीह है। वो ईसाई नसरानी दिल ही दिल में हंसने लगा। अगर हदीस सच्ची होती या ये अल्लाह का वली होता तो बताता ना मेरे अंदर क्या है। तो फिर दूसरे के पास गया, उसने भी कोई तशरीह बयान की। तीसरे के पास गया, उसने भी कोई तशरीह बयान की। 69 औलिया के पास गया, सब ने यही तशरीह बयान की। कोई इधर की उधर, कोई उसकी कोई तशरीह, वो फनी उसकी तशरीह बयान की। हज़रत जुनैद बगदादी का दरबार लगा हुआ था, जाके बैठ गए, बात खत्म हुआ। फरमाया किसी ने कोई पूछना हो तो आगे आ जाए। उसी ने पूछना था, करीब हो गया, कहने लगा हज़रत इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। इसका क्या मतलब है? हज़रत जुनैद बगदादी ने गौर से देखा और मुस्कुरा के कहा इसका मतलब ये है कि नस्रानियत छोड़ दें, ज़ुन्नार तोड़ दें और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लें। ये है इसका मतलब। कहने लगा हज़रत एक मेरा सवाल और रह गया कि आज से कबल मैं 69 लोगों के पास गया हूँ, उन्होंने नहीं बताया, तो क्या वो वली नहीं थे या कोई और वजह थी? फरमाया वो वली थे। तो कहा फिर उन्होंने क्यों नहीं देखा? फरासत का नूर उनके पास नहीं था। कहा था। तो कहा फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहा वो जानते थे कि इसका ईमान जुनैद बगदादी के हाथ पे लिखा हुआ है। अगर वो बता देते तो वही रुक जाते, वो आगे आगे भेजते जा रहे थे कि इसका ईमान तो हज़रत जुनैद बगदादी के हाथ पे लिखा हुआ है। तो अल्लाह ने मोमिन को ये शान दी हुई है, ये नज़र है मोमिन की, पहचान लेते। और बताना उस किया था कि हज़रत इमाम आज़म वुज़ू के पानी से पहचान लेते थे कि ये चुगलखोर के वुज़ू का पानी है या गीबत करने वाले के वुज़ू का पानी है। अल्लाह ने उनको ये सलाहियत और बात अता फरमाई है। ये मोमिन की शान है। हम गुनाहों की दलदल में फंस करके जो है वो अपनी उस शान को खो देते हैं और अपनी उस दौलत से महरूम हो जाते हैं। तो चेहरे की जुल्मत बता देती है कि ये शख्स नेकोकार नहीं है, बल्कि ये बदकार है, और उसके ऊपर अनजाने खौफ मुसल्लत हो जाती है। जो नेकोकार होता है उसकी जिंदगी एक तमानियत की जिंदगी होती है, और जो बदकार होता है वो वैसे डरता रहता है, वो बुज़दिल हो जाता है। जब मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी को फांसी घाट में ले जाया गया, तो जिस अंग्रेज ने मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी को फांसी दी है 1857 की जंगी आज़ादी में, उसका बयान सुनिए। वो कहता मैं ने ऐसा जुनूनी शख्स जिंदगी में कभी नहीं देखा कि जब मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी को हम पकड़ के फांसी देने के लिए फांसी घाट की तरफ ले जा रहे थे, तो कहता है जो जो फांसी घाट करीब आता जा रहा था, मौलाना के चेहरे की सुर्खियां बढ़ती चली जा रही थी। जिस बच से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कुछ परवाह ही नहीं है, जान तो आनी जानी। तो असल बात यह है कि जब अंदर साफ हो तो फिर चेहरे पे कमानियत होती है, जब अंदर गंद हो तो फिर इंसान का चेहरा मुस्तरब होता है, इंसान बुज़दिल हो जाता है, और इंसान का चेहरा अदम इत्मीनान का शिकार होता है। इसलिए इंसान के चेहरे की वो रौनक छिन जाती है गुनाहों की वजह से, और ये गुनाह की जो है वो बदबख्ती है। अच्छा, गुनाह की एक और बदबख्ती भी मुलाहज़ा कीजिए, और गुनाह का एक और असर भी देखिए। जिस तरह नेकी को जन्म देती है, पैसे से पैसा कमाया जाता है, इसी तरह बदी को जन्म देती है। एक शख्स एक बुरा काम करता है तो फिर उसको फिर कई बुरे काम करने पड़ते हैं। जिस तरह की वो कहावत मशहूर है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इंसान जो है वो अपने ऐब को छुपाने के लिए क्या कुछ करता है। तो एक उजरे गुनाह बदतर गुनाह वाली बात है, तो बदी को जन्म देती है। जब एक शख्स गुनाह करता है तो फिर कई गुनाह करता है। जब शराब पिएगा तो फिर शराब के गुनाह से ज़ना भी जन्म लेगा, जुआ भी जन्म लेगा, बदनज़री भी जन्म लेगी, डाकिया और चोरियां भी जन्म लेंगे। एक गुनाह की वजह से कई गुनाह जन्म लेंगे। तो ये गुनाह की नहुसत है। बात बंदा कहता है कि चलो मेरे में सिर्फ ये गलती है, लेकिन वो एक गलती इंसान को कई गुनाहों की तरफ ले जाती है, और फिर इंसान का पूरा ज़मीर गुनाहों के गंध से जो है वो मैना सुचैना हो जाता है। ये गुनाह की एक सज़ा है, और गुनाह का एक असर बद है। अल्लाहु अकबर। गुनाह का एक असर ये है कि उससे बढ़ने फसाद पैदा हो जाता है। ये ज़ाती हालात है। जिस मुआशरे में गुनाह होगा उस मुआशरे में तमानियत नहीं होगी, फसाद और शर हो। जिस मोहल्ले में चोर होंगे, जिस मोहल्ले में टाकू होंगे, जिस मोहल्ले में कुछ शराबी रहते होंगे, आप देखें उस मोहल्ले में चैन नहीं होगा।
اس محلے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی. تو یہ یعنی سزائے بد ہے گناہ کی کہ معاشرے کا امن، طمانینت اور چین لٹ جاتا ہے، دل اور بدن کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لینا پڑتی ہے اور انسان کے پنرے کچھ نہیں رہتا. بات لمبی ہو رہی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کی جڑ ہیں وہ 3 گناہ ہیں. اگر انسان ان 3 گناہوں سے بچ جائے تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جب گناہوں سے بچ جائے گا تو اس کے جو اثرات بد ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جائے گا. فرماتے ہیں 3 گناہ جو گناہوں کی جڑ ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تکبر، دوسرا حسد اور تیسری عرض. یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. اور سب سے پہلا گناہ جو روئے زمین پہ ہوا ہے، کائنات میں ہوا ہے، وہ تکبر ہوا ہے. شیطان نے کہا تھا انا خیر منکم، مالک میں تیرے شاطاش سے بہتر ہوں. اور دلیل بھی دینے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے بنایا مٹی سے، لہذا آگ مٹی سے بہتر ہے. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے. مفضول کے آگے افضل کیوں جھکے؟ اس لیے میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا. اللہ چاہتا تو دلائل کے انبار لگ جاتے، لیکن اللہ نے اس سے کوئی بات کرنے کا وعدہ نہیں کی. کہا نکل جا میرے دربار سے، یہاں تکبر کرنے والے کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ فرمایا ان کبریاء و ردائی، لوگوں کو کبریائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور کل قیامت کے دن جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا، جنت میں جا ہی سکتا ہے. تواضع کا لفظ دیا گیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع کی اللہ نے اس کو سر بلند کر دیا. جس شاخ میں پھل ہوتا ہے وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. عقل کا وہی ہے جس پہ پھل کرنی ہوتا ہے. اس لیے تکبر یہ بدترین خصلت ہے کہ شریعت میں اس کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو جو ہے وہ اپنے آزار کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکایا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. تو اس لیے تکبر سے بچنے کی تاکید کی. یہ پہلا گناہ ہے، اور کائنات کے اندر جب گناہوں کا آغاز ہوا تو پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہوا ہے. دوسرا گناہ حسد ہوا ہے. حسد کیا ہے؟ کہ کسی کی نعمت کا زوال چاہنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر کے اس کی عزت، شہرت، مرتبہ دیکھ کر کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اتنی دیر تک حسد نہیں بنتا جب تک اس کو زبان پہ نہ لائے یا اپنے عمل میں نہ لائے. یعنی اس کی تحقیر کرنے کے لیے کوئی عمل کرے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے، یا اپنی زبان سے اس کی برائی کرے. جتنی دیر تک یہ نہیں کرتا اتنی دیر تک جو ہے وہ حسد نہیں بنتا. لیکن اس کیفیت سے بھی آدمی کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیت انسان کو یہاں تک لے آئے گی اور وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا. اور حاسد جو ہوتا ہے اس کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں حسد بیماری نہیں جا، تیرا علاج مرنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تو حسد کی بیماری آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اللہ کسی کو دولت دے دے، کسی کو عزت دے دے، کسی کو شہرت دے دے. تمام طبقات میں، وہ سیاسی لوگ ہوں، وہ کاروباری لوگ ہوں، وہ شریکہ برادری کے نام سے ہم نے ایک نیا سلسلہ کرا ہوا ہے. حالانکہ شریک کا معنی کیا ہے؟ شرکت کرنے والا، دکھ درد میں سانجھی اور مصیبت اور تکلیف میں ساتھی. جائیداد میں وہ شرکت کرنے والا ہوتا ہے. بلکہ اگر کسی سے کوئی قتل خطا ہو جائے اور اس کی دیت دینا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شریک اس کی دیت دیں گے، چونکہ یہ اس کے دکھ درد کے سانجھے. وہ اگر نہیں دے سکتا دیت تو یہ اکٹھی کر کے رقم کو ان کے اوپر نازل ہے کہ وہ جو اس کی طرف سے اپنے بھائی کو چھڑائے اس کی دیت دے. تو یہ شریکہ جو برادری ہے یہ تو وسیع رشتہ ہے، لیکن ہم نے شریک بمانا دشمن سمجھ لیا. حالانکہ شریک تو شرکت والے کو کہتے ہیں جو شرکت کرتا ہے، تمہارے دکھ درد کا ساتھی ہے. لیکن ہماری یہ شریکہ برادری کیا ہے کہ بیٹی کی شادی بھی ہو تو شریک تار میں رہتے ہیں کہ کوئی کمی پیشی آئے اور ہم ڈنڈورا پیٹے. اگر ایک لقمہ بھی کھانے کا کم ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اس پر شور کریں اور اس کی تردید کریں. یہ عجیب رنگ ہے، عجیب ڈھنگ ہے. حسد کی آگ جو ہے وہ گلی گلی اس وقت جن رہی ہے. بلکہ معاف کیجیے گا کہ یہ آگ اور اس آگ کی ہتر اور اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ علماء بھی آتے ہیں اور وہ بھی حسد کی آگ میں ایک دوسرے سے جن رہے ہیں. بلکہ خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ یہ جو 72 فرقے بنے یہ بھی حسد کی وجہ سے بنے. وہ کہتے ہیں ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں. یعنی حسد کے اگر حروف ابجد نکالے، جس طرح بسم اللہ کے حروف نکالتے ہیں تو 786 بنتے ہیں، اگر حسد کے عدد نکالے تو 72 بنتے ہیں.
تو ख्वाजा भी कहते हैं कि अफ्तादो दो तरीक हसद के अदद से हैं, अपना ये तरीक के बाहर अदद से हैं, अपने आप को इस अदद से वाहे रखना, कहीं हसद की आग में ना जलना, तुम्हारी नेकियां भी जलेगी, मन भी पाक भी रहेगा और महसूद का बिगाड़ भी कुछ नहीं सकोगे। हसद करने के बावजूद उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकोगे। अगर उसको अल्लाह ने शोहरत दी है तुम छीन नहीं सकते, इज्जत दी है तुम छीन नहीं सकते, क्योंकि इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता है। इसी तरह जिसको जो दिया है अल्लाह ने दिया हुआ है, इसलिए हसद करके अपने आप को परेशानी में डालना है, और ये ऐसी आगे जो हमेशा अंदर सुलगती रहती है और किसी सूरत में बुझती नहीं, आग बढ़ के चले जाती है। तो इसी तरह तमा का एक मर्ज है, और हुजूर ने फरमाया कि इंसान को एक बाती सोने की दे दी जाए जिसमें सोना ही सोना हो, तो वो हिरस करेगा कि काश मेरे लिए एक और होती। यदि इंसान का हिरस ऐसा है कि कभी भी जो है ये पूरा ही नहीं होता। जो करोड़पति है वो कहते हैं हम अरबपति क्यों नहीं, और जो अरबपति है वो कहते हैं हम करोड़पति क्यों नहीं। मैं कहता हूँ भैया उनको भी तो देखो जो नानी शबीना को भी तरसते हैं, हुजूर फरमाया कि अपने नीचे देखो, ऊपर ना देखो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ। दुनिया के मामले में नीचे देखो और दीन के मामले में ऊपर देखो। हमने उलट काम बनाया हुआ, दुनिया के मामले में देख लिया फला अरबपति है, मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, और जब दीन का मामला आता है तो हम कहे यार आप नमाज नहीं पढ़ते, वो कहते जी फला आदमी जो है वो नमाज पढ़ के ये बुरे काम करता, हम उससे तो चले गए, उससे तो अच्छे हैं। मियाँ जब दीन का मामला हो तो उस वक्त देखें हम 5 पढ़ते हैं, फला तहज्जुद भी पढ़ता है, तो वो हमसे आगे, हम उससे आगे जाने की कोशिश करें, उससे फर्स्ट आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जब दुनिया का मामला आए तो हम कहें अल्लाह ने हमें करोड़ों दिए हुए, लाखों दिए हुए, वो भी तो हैं जिनका बेचारा का अपना मकान भी नहीं है, वो भी तो हैं जो नाने शबीना को तरसते हैं। हमारे बच्चे तो हर रोज ईद मनाते हैं, तो वो भी तो लोगों के बच्चे हैं, उनके सीने में तो धड़कता हुआ दिल है जो ईद के दिन भी आलू छोले बेचने पे मजबूर होते हैं, जो बसों के अंदर पानी ईद के दिन भी बेच रहे होते हैं, वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं जो ईद के दिन गुब्बारे बेच रहे होते हैं। कभी हमने देखा इस बात पे और किया? अगर इतना सोचने की आदत बन जाए तो फिर हमारी हिफ्ज़ खत्म हो जाए। हजरत रूमी मुर्शिद इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही, आप फरमाते हैं कूज़ा चश्मे हदीसा पुर मशर तासक़तान नशर पुन दो मशर, हदीस का पेट तो भर जाता है, आँख नहीं भरती। और फरमाया कि आँख को 2 चीजें भरेगी, या कब्र की मिट्टी और या फिर सब्र का पानी। तो अगर किसी के पास कनात और सब्र भी है और उसके पास जो है वो कब्र की मिट्टी भी नहीं मिली उसको, तो उसकी आंखें नहीं भर सकती हैं, आंखें खुली हैं और इंसान हिरस की आग में भी जलता रहता है। उलमा कहते हैं ये बुनियादी 3 गुनाह हैं। हसद होगा, हसद के नतीजे के अंदर कत्ल व गारत होगी। काबिल ने जो है वो कत्ल किया हाबील को हसद की बुनियाद पर। हसद होगा तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने का चक्कर होगा। इस तरह हिरस होगी तो लूट मार होगी, हिरस होगी तो गरीब का खून तोड़ेंगे, हिरस होगी किसी का हक दफन करेंगे, हिरस होगी तो फिर बहुत सारे नुकसान होंगे। यतीम का माल खाएंगे हिरस की वजह से, किसी सादे हक को हक न देंगे हिरस की वजह से, इस तरह तकब्बुर की वजह से जो है वो इंसानों को आप अजीब समझ के फिरेंगे और इंसानों की तकदीर करेंगे। और आप कहते हैं कि बुनियादी ये 3 गुनाह हैं, हसद, हिरस और तकब्बुर। अगर अपने दामन को इन 3 गुनाहों से बचा लिया जाए और महफूज कर ले तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से बाकी गुनाहों से भी बंदे को निजात अता फरमा देता है। तो आइए आज की इस बाबरकत महफिल में ये एक सादा सा छोटा सा नुस्खा है जो हम ले जाएं कि इन 3 अमराज से बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बगैर चारा भी तो नहीं है। कहीं अपना आप लुटाना बैठे और अपनी जिंदगी बर्बाद न कर बैठे। जिंदगी के अंदर माँ कब्र के सारे गुनाहों से माफ़ी मांग ले और रब की रज़ा अपनी मकसूद जिंदगी समझ ले। अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें इन 3 अमराज से और इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं वो कबायर 700 की तादाद में है या उससे ज़्यादा और सगायर ना तादाद है, अल्लाह करम फरमाए हमें कबीरा और सगीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कबीरा भी हमसे गुनाह ना हो और अल्लाह करम करे तो हमसे सगीरा गुनाह भी ना। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि उतनी देर तक किसी बंदे को अल्लाह का हकीकी पुरब नहीं मिलता जब तक 40 साल यूं ना गुजर जाए कि उसके बाएं संत बैठा हुआ जो फरिश्ता है उसको एक गुनाह लिखने का मौका भी ना मिले। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह का कौल है, वो 40 साल तक फारग बैठा रहे। तो कहा जब तक ये कैफियत नहीं नसीब हो जाती तो हकीकी पुरब नहीं मिलता। गुनाह सरजद हो भी जाएं, बड़े गुनाह अगर नहीं करेंगे तो छोटे यूं ही माफ हो जाएंगे, अगर बड़े भी हो गए उसकी रहमतों के दरवाजे फिर भी खुले हुए हैं, इसलिए वो माफ करने वाला है। आइए मैं और आप अल्लाह की रहमतों और करम नवाजियों का नूर हासिल करें। आज जब हम हाल में दाखिल हो रहे थे तो एक तरफ तो सहरी की बरकतें थी और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमतों की बिरखा भी बरस रही थी। और मैंने अल्लाह की बारगाह में
یہ امید اور آرزو کی کہ مالک آج جو کہوں اس کو دلوں میں اتار دے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حساب دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔